Hello, dear viewers of the educators. We hope that you all are fine and doing well. So now we are here with the most demanded topic. There were a lot of queries regarding this particular topic. That why the demand curve is sloping downward from left to right. This is the most demanded question that I've ever been faced. So now we are trying hard to make the video more interactive. So let's discuss. सबसे पहले हम जानते हैं that there is a thing that is known as law of demand. What is demand and how it works, that will be studied separately in the next topic. Now we are here with the introduction of this particular topic that is being demanded by the viewers. So what is law of demand? It basically says that other thing remaining the same, if the price of the commodity rises, the quantity of the demand of the commodity will fall. Similarly, it will happen vice versa, that if the price falls, the quantity demanded will rise. तो ये बहुत ही सिंपल सा रिलेशन था जो क्लास जहाँ तक मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स की स्टडी शुरू होती है फ्रॉम क्लास 9th ऑनवर्ड्स. नॉर्मली हर बच्चा जानता है दैट व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड. इट इज़ अ बहुत ही साइकोलॉजिकल लॉ है और बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए है. बट हेयर वी आर दैट व्हाई दिस डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और इसी में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि व्हाई द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स. what is the reason behind the operation of law of demand. The question can be like this also. क्वेश्चन इस तरह ही पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ प्राइस विद द क्वांटिटी. So there can be multiple type of questions that can be asked for the same for the one particular question. Now let's see कि हम इसको किस तरह से solve करते हैं. The first reason why the demand curve is sloping downward from left to right is diminishing marginal utilities. What is marginal utility basically? In our earlier videos we had discussed what is marginal utility, but here in the short form we will discuss what is marginal utility. marginal utility का मतलब बहुत ही सिंपल फॉर्म में अगर हम देखें तो marginal utility का मतलब हमारे सामने निकल के आता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो विद द कंटिन्यूअस यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी उसकी जो सेटिस्फैक्शन पार है, जो उससे मिलने वाला हमें सुकून है, जो जिससे हमें जो खुशी मिलती है वो लगातार गिरती रहती है. So this is basically law of diminishing marginal utility. As more and more we increase the consumption of any particular commodity, the utility being derived from that particular commodity keeps on falling. So it can be summarized as अगर हम इसको summary में लिखें for the sake of convenience, that if the quantity of the commodity increases, the marginal utility will fall. इसका बहुत common example दिया जाता है कि if you just continuously drink more glasses of water, if you are thirsty, if you are feeling thirsty and you just demand one glass of water, it will quench your thirst, it will save your life. बहुत सुकून मिलेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा. वो पानी का जो एहसास है, जब वो पानी आपके गले से नीचे जा रहा होता है तो आपको ठंडा ठंडा एहसास होता है. दैट इज जस्ट ऑसम. लेकिन आपकी प्यास तो नहीं मिटी अभी, ठीक है, आपने पानी मिल गया, बहुत देर से आप प्यासे थे, आपका गला तर हो गया, बहुत सुकून मिला. लेकिन जैसे जैसे आप पानी पीते जाएंगे और एक गिलास आप डिमांड करेंगे, फिर एक और गिलास डिमांड करेंगे, बट इसको अगर आप प्रैक्टिकली अपने ऊपर रख के देखिए तो ऐसा होगा कि दूसरे गिलास से वो सुकून नहीं मिलेगा जो पहले से मिल रहा था. इसी तरह से तीसरे गिलास के जो पानी आप कंजम्पशन करेंगे वो उन दोनों ग्लासेस से उसका कंजम्पशन की यूटिलिटी कम होगी जो कि आप पहले पी चुके थे. तो एज मोर एंड मोर यू आर ड्रिंकिंग योर वाटर, द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द एडिशनल ग्लास ऑफ वाटर कीप्स ऑन फॉलिंग. ये बहुत सिंपल सा एक रिलेशन हमारे सामने देखने को मिलता है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में. तो बट सिंपल सी बात है. अगर नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल दैट इफ यू आर इन अ डेजर्ट, अगर आप एक बहुत भयानक डेजर्ट में जहाँ पे दूर दूर तक पानी का कोई सोता नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे आपको पानी मिल सके डेजर्ट में, आप फॉर एग्जाम्पल, और बिल्कुल जान जा रही है आदमी की, बिल्कुल पानी मिल नहीं रहा है, पानी एक गिलास पानी के लिए बहुत परेशान. दूर पे उस आदमी ने देखा कि
देयर इज समथिंग कि वहाँ पे उसको पानी मिल सकता है, वो वहाँ पे जाता है। उसको इत्तेफाक से वो जो आदमी बहुत दूर पे था उसके पास कुछ अराउंड 10 बॉटल्स थी पानी की। तो ये जो मिस्टर एक्स थे जो डेजर्ट में फंसे हुए थे, ये जो मिस्टर एक्स इनके पास जाते हैं, एक्स इनसे कहते हैं यार एक बोतल पानी की दे दो हमें। तो वो कहता है हम एक बोतल तुम्हें देंगे फॉर 1 बॉटल फॉर 10,000 रुपीज। मरता क्या ना करता, मिस्टर एक्स राजी हो जाएंगे एक बोतल पानी पीने के लिए 10,000 रुपए दे के भी। बट जैसे जैसे, क्योंकि एक्स की एक बोतल पानी पी के अब जान तो बच गई है नो डाउट, लेकिन अभी प्यास तो नहीं मिटी है। एक्स कहेंगे एक और बोतल दे दो। तो अब ये जो आदमी था, यहाँ पे जो आदमी था जिसके पास 10 बोतलें थी, ये कहेगा दूसरी बोतल के भी 10,000 देंगे। लेकिन एक्स क्या कहेगा, यार दूसरी बोतल के हम 10,000 तो नहीं दे पाएंगे, हाँ 5,000 ले लो। क्यों? पैसे उसने क्यों कम किए? क्योंकि पानी की यूटिलिटी मिस्टर एक्स के लिए कम हो गई पहले के मुकाबले। तो आप ये देखिए, ये अगर आप अपने ऊपर भी अप्लाई करिए, तो अगर आप बहुत प्यासे हैं तो एक गिलास के लिए ठीक है बहुत पैसे देने को तैयार है, लेकिन जब आपकी प्यास वो मिट जाएगी, जब आपका वो काम पूरा हो जाएगा, तो आप पहले के मुकाबले कम पैसे देंगे। तो वही बात यहाँ पे देखने को मिलती है कि जैसे जैसे क्वांटिटी हमारी कंजम्पशन की बढ़ती है, our marginal utility derived from that particular consumption falls, and as your utility is falling, the price you are ready to pay will also fall, because जो कंजम्पशन का जो लॉ है, इक्विलिब्रियम का जो लॉ है यूटिलिटी का, वो क्या कहता है हमारे सामने? It says the consumer will be in the position of equilibrium when the margin utility derived from the commodity X will equate its price. तो जहां भी यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाएगी, कंज्यूमर वहीं पे इक्विलिब्रियम कर लेगा। सो इफ यू जस्ट हैव अ लुक इन दिस डायग्राम कि जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ी फ्रॉम, अब यहाँ पे अगर हम इसी डायग्राम के रेफरेंस में बात करें तो in the reference of this diagram, when the quantity increases from OQ to OQ1, as your quantity is rising, your marginal utility is falling, and so the prices should also fall, and the prices is falling from OP to OP1. If you just see the diagram here, that as your quantity is rising from OQ to OQ1, the prices is falling from OP to OP1. This is the basic equation जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिली. This is according to figure. Okay, when the quantity is increasing from this to this point, the prices is falling from this to this point because of the fall in the utility derived by the consumer from the consumption of the particular commodity. Now let's move towards the next explanation. Next reason why the demand curve is sloping downward from left to right. So the second reason is income. You can say income effect. The second reason we are taking as income effect. So what is income effect? Income here is not denoted by कि आपने कितना कमाया. आप कहीं जॉब करने गए, you are earning wages. आपने कोई जमीन किराए पे दी, that you are earning rent. If you are granting some loans, you are entitled to the interest, or if you are entrepreneur, that you are entitled to the profits in the firm. But here, income doesn't means all these things. Income कुछ और है. इस कंटेक्स्ट में हमारे सामने इनकम कुछ और है, ये नहीं है ये जो मैंने बताया, जो आप लोग जानते हैं. इनकम here means real income. So we have to study what is real income. Real income basically कोई इनकम नहीं होती, बल्कि real income arises. For example, you are just taking 100 rupees with you when you are going to the market. You are equipped with 100 rupees. The thing that you are going to purchase is of 100 rupees per kg. The price of the commodity X is 100 rupees per kg. 100 रुपए लेके जा रहे थे, 100 रुपए किलो सामान मिल रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, प्रॉब्लम क्या हुआ ये कि फॉर एग्जाम्पल दिस प्राइस हैज फॉलन फ्रॉम रुपीज 100 फ्रॉम 100 टू रुपीज 80 पर केजी.
तो आप देखिए कि आपके पास 100 रुपए थे पहले केस में, लेके आए थे और 100 रुपए खर्च हो गए, बचा आपके पास कुछ नहीं, 0। बट इन द सेकेंड इंस्टेंस आप 100 रुपए लेके गए थे मार्केट में, प्राइस कम हो गया था, उसका 80 रुपए किलो हो गया था, तो अब आप 80 रुपए खर्च करके आपके पास कितने बचते हैं? आपके पास बचेंगे 20 रुपए। तो आपने ये देखा कि पहले केस में जब प्राइसेस नहीं बढ़े हुए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, 0। बट व्हेन योर प्राइसेस हैज फॉलन फ्रॉम 100 to 80 rupees, you the consumer or you are left with over 20 rupees, and this 20 rupees will be the real income of the consumer. In short, बहुत सिंपल। अब इस 20 रुपए में या तो आप इसी कमोडिटी की ज़्यादा क्वांटिटी कर लें, फॉर एग्जांपल आप 1 किलो सामान लेने आए थे, अब आप फॉर एग्जांपल इस 20 रुपए से क्या कर सकते हैं? यू हैव 2 ऑप्शंस। ये जो 20 रुपए आपके बचे हैं, दैट इज योर रियल इनकम। इससे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 1 kg की जगह 1.5 और समथिंग जो भी बनता हो एग्जैक्ट, वो इसी क्वांटिटी की बढ़ा लीजिए आप, या 20 रुपए सम अदर कमोडिटी पे आप खर्चा कर दीजिए। ये आपके ऑप्शन के ऊपर है। तो ये 20 रुपए जो आपके पास बचते हैं ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इस रियल इनकम से हमें क्या देखने को मिलता है? फिगर में क्या समझ में आती है हमारे बात? इन द गिवन फिगर वी कैन से that when the price of the commodity falls, the real income of the consumer rises, and as the real income of the consumer rises, the quantity demanded will be increased. So if you see, when the price falls from OP to OP1, price gira in the diagram, the quantity is increasing from OQ to OQ1 because the consumer has decided to opt for the first option. That means with the amount that he had saved due to the fall in the prices, he is ready to invest, he is ready to purchase more of the quantity that he is going to purchase when he moved out of his home. तो आपने देखा that when the prices has been fallen from OP to OP1, the quantity has increased from OQ to OQ1 because of the income effect. Now moving towards the third reason why the income curve slopes downward from left to right. So what is the third reason? Third reason is substitution effect. Substitution effect. As we have discussed already that there are 2 different commodities that is related to our commodity in question. The first is substitute and another is complementary goods. Substitutes के बारे में बात करते हैं. If there are 2 commodities, we are talking about commodity X. ये हमारी own commodity है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. And Y commodity is a substitute. क्या देखने को मिलता है? That if the price of a commodity falls, so this commodity will become, they both have the same prices at the initial stages. The price is 10 for this commodity as well as the price of Y is also 10. But if the price of X falls, it becomes relatively cheaper. Relatively cheaper means इसके मुकाबले में किसके? Y के मुकाबले में X सस्ता हो गया, relatively cheaper. So क्या होगा कि the consumers here who are purchasing the commodity Y, तो जो इनका consumer base था इसका commodity Y का, वो जब ये देखेगा कि commodity X relatively cheaper हो गई है, तो consumer यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्योंकि पहले दोनों 10 में मिल रहे थे सामान, कोई दिक्कत नहीं थी, कंज्यूमर चाहे ये ले चाहे एक्स ले चाहे वाई ले। लेकिन जब एक्स का प्राइस कम हो तो एक्स वाई के मुकाबले रिलेटिवली चीपर हो गया, तो जो कंज्यूमर बेस वाई के पास था वो शिफ्ट कर जाएगा फ्रॉम वाई टू एक्स. सो द प्राइस ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स, द क्वांटिटी ऑफ एक्स विल राइज.
This can be known as increase in consumer base. It is also a reason for the negative sloping demand curve. Increase in the consumer base. अगर हमारी कमोडिटी के प्राइस के कम होने से दूसरी कमोडिटी जो हमारे सब्स्टिट्यूट था उसके कंज्यूमर हमारी तरफ आ रहे हैं, तो दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. और अगर हमारी कमोडिटी के खुद के जो कंज्यूमर्स थे, प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स जो थे, जो हमारी कमोडिटी महंगी होने की वजह से नहीं ले पा रहे थे, हमारी कमोडिटी का जैसे ही दाम कम हुआ, उन लोगों ने भी हमारी कमोडिटी को आसानी से खरीदना शुरू कर दिया. तो ये हमारा चौथा रीजन हो जाएगा, दैट इंक्रीज इन द कंज्यूमर बेस. आई रिपीट द थिंग, हमारी कमोडिटी थोड़ी सी महंगी थी. फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग थे जो हमारी कमोडिटी खरीदना चाह रहे थे, बिकॉज ऑफ द राइज्ड प्राइसेस, इंक्रीज प्राइसेस, दे वर नॉट एबल टू परचेज अवर कमोडिटी. सो व्हेन द प्राइस ऑफ अवर कमोडिटी फॉल्स, more number of consumer will be attracted to purchase our commodity in question. And दूसरी चीज हमारे सामने क्या हुई थी कि when the price of our commodity had fallen, it has become relatively cheaper as compared to the other substitutes. So क्योंकि ये मुकाबले में सस्ती हुई, तो जो सब्स्टिट्यूट के जो कंज्यूमर्स थे वो भी हमारी कमोडिटी की तरफ अट्रैक्ट होकर हमारी कमोडिटी की डिमांड बढ़ा देंगे. सो डिमांड विल राइज. सो इफ यू जस्ट लुक टुवर्ड्स द डायग्राम अगेन, इन दोनों कॉजेस को हम एक बार में बताने की कोशिश करेंगे. दैट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर बेस, इनके बारे में अगर हम पूरी बात एक बार में बताएं तो हमारे सामने क्या बात निकलती है कि आप देखें कि जब हमारी कमोडिटी का जो प्राइस था वो कम हो गया फ्रॉम दिस P to P1, तो हमारी कमोडिटी रिलेटिवली चीपर हुई दूसरी कमोडिटी के मुकाबले. दूसरी कमोडिटी के जो कंज्यूमर्स थे वो उन्होंने आके हमारी कमोडिटी की जो डिमांड थी वो Q से Q1 बढ़ा दी. सिमिलरली जो हमारे खुद के कस्टमर्स थे, जो हो सकते थे क्योंकि महंगी होने की वजह से नहीं आ पा रहे थे, तो जो हमारी कमोडिटी प्राइस P से P1 गिरा, तो हमारी उन कंज्यूमर्स ने डिमांड Q से Q1 बढ़ा दी जो पहले हमारी कमोडिटी को खरीद नहीं पा रहे थे. सो दीज आर द 4 causes that leads to the fall in the causes the demand curve to be a negatively sloped demand curve. अब हम बात करते हैं पांचवें और इस पांचवें मेथड की जो हमारे सामने आएगा अभी. दैट इज the fifth method is increase in the number of users, increase in users of the commodity. बहुत ही सिंपल से स्कार्सिटी का लॉ है कि द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं और वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होती है. किसी भी कमोडिटी के यूजेस बहुत सारे हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज है, दे आर लिमिटेड इन नंबर. यू शुड बी जस्ट सॉलिड इन दिस कंसेप्ट. अब हम देख रहे थे, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल हेयर ऑफ मिल्क. हम मिल्क का एग्जाम्पल लेते हैं. से फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज ऑफ 30 रुपीज पर लीटर. मिल्क के यूजेस बहुत सारे हैं. वी कैन मेक कर्ड आउट ऑफ इट, वी कैन जस्ट हैव अ टी आउट ऑफ इट. इस टी के साथ साथ हम कभी कभी मेरा मन करता है तो हम कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं. वी कैन ड्रिंक, इसको यूज़ कर सकते हैं हम एज अ एनर्जी ड्रिंक. मिल्क से हम बटर बना सकते हैं, मिल्क से हम पनीर बना सकते हैं. देयर आर एन नंबर ऑफ यूजेस दैट दिस मिल्क कैन बी पुट इन फॉर अवर कंजम्पशन पर्पसेस. अब 30 रुपये लीटर दूध था, थोड़ा सा महंगा था, तो हम सिर्फ चाय बनाने के इस्तेमाल में ले रहे थे. अब देखिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड एंड वांट्स आर लिमिटेड, तो हम इसका एलोकेशन कैसे करते हैं? इसका एलोकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी. जो चीज़ ज़रूरी है वो पहले इस्तेमाल की जाएगी. स्केल ऑफ प्रेफरेंस कहते हैं इसको. प्रायोरिटी के बेसिस पे हम स्केलिंग करते हैं. जो भी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होगी हम उसका इस्तेमाल पहले करेंगे एज कम्पेयर टू द अदर
यूजेस। तो मिल्क महंगा था तो हम सिर्फ चाय बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मिल्क थोड़ा सा सस्ता हुआ, उसका प्राइस गिरा, हमने उस मिल्क से कर्ड भी बना लिया, और प्राइस मिल्क का सस्ता हुआ, हमने कॉफ़ी भी पीना शुरू कर दी, और मिल्क सस्ता हुआ, हमने पीना भी शुरू कर दिया, सुबह शाम दूध पीने लगे हम। फिर और सस्ता हुआ मिल्क फॉर एग्जांपल, तो हमने क्योंकि बहुत था मतलब मिल्क हमारे घर में उसी रेट में, क्योंकि रेट कम हो रहा है, हमारा जो मिल्क का बजट था महीने का फॉर एग्जांपल वो था 2,000 रुपये का, हमें मिल्क चाहिए। हमारा जो बजट था मिल्क के ऊपर खर्चा करने के लिए वो 2,000 रुपये पर मंथ था। तो 2,000 तो कांस्टेंट रहा। अब ये दूध का जो दाम था वो लगातार कम होता गया। तो अब हमारा बजट में हमारे पास दूध अब ज़्यादा हो जाएगा, चाहे कितनी पीजिएगा। तो अब जब दूध बचने लगेगा तो आदमी का काम है चलो दही जमा लें इसका, फिर बचा होगा, अभी बहुत दूध है चलो कॉफ़ी पी लें, फिर बहुत दूध है चलो घर में सब लोग सुबह शाम दूध पियो, अच्छी बात है, कैल्शियम जनरेट हो गया ना, हड्डियाँ मजबूत होंगी। फिर अभी भी दूध खत्म नहीं हुआ, बहुत है, क्योंकि 2,000 रुपये में अब क्योंकि रेट 30 रुपये थे फॉर एग्जाम्पल, 5 रुपये हो गया, तो अब क्या हुआ, उस 2,000 रुपये में कितना दूध आ गया आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो फिर क्या हुआ कि उस दूध को जो है वो फेट के हमने मक्खन बना लिया, और थोड़ा सा जमा के पनीर बना लिया। मतलब जैसे जैसे दूध का रेट कम होता गया विद आवर गिवन बजट, हमने दूध का इस्तेमाल बढ़ा दिया, उसके दूसरे यूजेस में भी हमने दूध को लेना शुरू कर दिया। तो जब हमने इसको कर्व में देखा तो हम क्या देखते हैं कि यही चीज़ हम जब कर्व में देखेंगे तो बहुत सिंपल सा रिलेशन हमें समझ में आएगा कि जब हमारे प्राइसेस गिरना शुरू हुए थे फ्रॉम P to P1, तो हमारी क्वांटिटी Q से Q1 क्यों बढ़ गई, क्योंकि जब प्राइस गिरता है तो हम अपनी कमोडिटी को उसके मल्टीपल यूजेस में भी इस्तेमाल करने लगते हैं जहाँ वो पहले से नहीं हुए थे। तो इसीलिए जब प्राइस गिरता है फ्रॉम P to P1, द क्वांटिटी विल इंक्रीज फ्रॉम Q to Q1. So these are the basic reasons why the demand curve slopes downward from left to right. I hope that the concept has been clear to you, and if there are certain doubts and queries arising, you are just free to ask whatever you need. There is my prayer that you all should stay safe and blessed. Thank you for now. Thank you for watching.